على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إنما يخشى الله من عباده العلماء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز دوستو، جمادی الاولیٰ 1441 ہجری کا آخری جمعۃ المبارک ہے۔ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ اسی مہینے میں 1957 کے اندر اس دھرتی سے رخصت ہوئے ہیں۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کی خدمت میں چند گزارشات پیش کروں گا، امید ہے آپ توجہ فرمائیں گے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم شیخ الحدیث ہیں جنہوں نے غربت کے اندر پرورش پائی اور قربانیوں کے اندر جوانی گزاری۔ علم حدیث کی خدمت میں انہوں نے جان دنیا سے دے دی ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ 1879 میں پیدا ہوتے ہیں اور 1957 میں حضرت کا انتقال ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں جن کا سلسلہ نسب حضرت امام زین العابدین بن حضرت حسین بن حضرت علی رضی اللہ عنہم تک پہنچتا ہے۔ مولانا سید حسین احمد مدنی اتر پردیش ہندوستان میں پیدا ہوئے اور بچپن میں ان کو والدہ اور والد نے وہ تعلیم عطا فرمائی جس سے ان کی تربیت کی بنیاد رکھی گئی۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالی دارالعلوم دیوبند میں تشریف لائے ہیں علم دین پڑھنے کے لیے، تو حضرت مدنی رحمہ اللہ کے اساتذہ بہت مشہور ہیں۔ ان میں 7 اساتذہ وہ ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں ایسا کام کیا ہے کہ دنیا اسلام انہیں سلام پیش کرتی ہے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے استاد حضرت مولانا ذوالفقار علی ہیں جو حضرت شیخ الہند کے والد محترم ہیں۔ دوسرے استاد حضرت مولانا شیخ الہند محمود حسن دیوبندی ہیں۔ تیسرے استاد حضرت حکیم احمد حسن ہیں جو حضرت شیخ الہند کے چھوٹے بھائی ہیں۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ کے چوتھے استاد مفتی عزیز الرحمن عزیز الفتاویٰ کے مصنف جنہوں نے آدھی صدی تک فتویٰ کی خدمت سر انجام دی ہے۔ پانچویں استاد حضرت مولانا حبیب الرحمن ہیں۔ مولانا حبیب الرحمن دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم ہیں۔ اسی طرح حضرت مولانا کے استادوں میں ایک استاد کے محترم کا نام حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری شیخ زکریہ رحمہ اللہ کے شیخ کا نام آتا ہے، اور حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند قاری طیب قاسمی رحمہ اللہ کے والد حضرت مولانا محمد احمد رحمہ اللہ یہ بھی انہی کے اساتذہ میں شمار کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے ان کو پڑھایا، لکھایا، سمجھایا اور وہ تیار کیا کہ جب انہوں نے علم دین سے فراغت حاصل کی اور مکمل دینی علوم پر دسترت حاصل کی تو یہ سعودی عرب حج کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں عرب کے شیوخ اور علماء سے ان کی گفتگو ہوئی۔ ابھی ان کی عمر 24 سال تھی۔ رب نے دین میں وہ ملکہ عطا فرمایا تھا کہ ادھر کے شیوخ نے کہا کہ آپ ہماری یہاں مسجد نبوی میں صدر المدرس کے طور پہ کام کریں گے۔ ان کو وہاں مدرسین کا صدر بنایا گیا۔ 24 سال کی عمر میں اس شخص نے 18 سال تک بیٹھ کر مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سائے میں وہ دینی خدمات سر انجام دی ہیں کہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ عالم عرب خصوصاً مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ وہ جگہ ہیں جہاں پورا عالم اسلام پلٹ کے آتا ہے۔ حضرت مدنی کا درس وہاں حدیث پاک کا ہوتا تھا تو حضرات 4 دانگ عالم سے تشریف لاتے، دنیا کے کونے کونے سے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھنے کے لیے آتے، سمجھنے کے لیے آتے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ یہاں ان کو پڑھایا کرتے اور حدیث پاک سمجھایا کرتے۔ ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں اگر کسی حدیث کی سمجھ میں کبھی کوئی تھوڑی سی مشکل پیش آتی تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے رشتے میں نانا ہی لگتے ہیں۔ یہ آنکھیں بند کرتے، دل پہ مراقبہ کرتے، توجہ رسول اللہ کی طرف کرتے، حضور پاک کے دربار سے اس حدیث کی مشکلات کو سمجھا دیا جاتا۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عرصے میں بڑے کام کیے ہیں، اس حد تک کام تھے، علماء لکھتے ہیں کہ گھر میں فاقہ ہوتا،
फ़क्र होता। बाज़ औक़ात सहरी और अफ्तारी में भी खजूरों के साथ सहरी और अफ्तारी और पानी के साथ करनी पड़ती, तो हज़रत मदनी रमज़ान का रोज़ा भी न छोड़ते। एक बुज़ुर्ग आए, उन्होंने आकर सहरी पेश की, इन्होंने कबूल फरमा ली। वो अफ्तारी में भी आए तो वो कहते हैं मैं अफ्तारी और सहरी लाया, लेकिन मुझे अंदाज़ा हुआ इनके घर से कुछ नहीं आता, लेकिन इन्होंने मुझे मना फरमा दिया कि देखो मेरी घर की बातें किसी को न बताना। ये वो शख्स है जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान पे होने पर हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की हदीस की खिदमत सरअंजाम दी, और इन्हें लक़ब मिला है शेखुल अरब वल अजम। ये बंदा उलमाए अरब को भी हदीस पढ़ाने वाला है, उलमाए अजम को भी हदीस पढ़ाने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनसे कुर्बानियाँ भी दीन के लिए बड़ी ली हैं। शरीफ मक्का, उस ज़माने में मक्का का हुक्मरान था, वो अंग्रेज़ों के साथ बिक गया। बिकने की बदौलत उसने ये इलाका खाना जंगी के हवाले कर दिया। हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह मदीना मुनव्वरा से चल के मक्का मुकरमा आए हुए थे उन दिनों में, जब शरीफ मक्का ने खुद अपनी कीमत लगा के खुद को बेचा वहाँ पर। तो हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अपने उस्ताद मोहतरम शेखुल हिंद को बुलवाए हुए थे, उनके साथ मुख्तलिफ हज़रात उलमाए कराम वो भी थे। शरीफ मक्का की कारिस्तानियों की खातिर इनको गिरफ्तार करा दिया गया। हालांकि कुछ दिनों के लिए उस्ताद की खिदमत पे आए थे, अपने घर बार वहाँ पर छोड़ कर आए मदीना मुनव्वरा में। हज़रत मदनी रहमतुल्लाह मदीना से इतनी मोहब्बत करते थे इल्म हदीस पर कि एक बार इनकी अहलिया फौत हुई, उनके कफन दफन के बाद आकर हदीस पढ़ाने लगे। उलमा उठे, उन्होंने कहा हज़रत गहरा सदमा है, आज आप नागा फरमा लें। उन्होंने कहा सदमे में हदीस पढ़ूंगा तो मेरी अहलिया को सवाब जाएगा। इतनी वहाँ जो है ना, क्या कहते हैं, हदीस की खिदमत पर अपनी जान लगाते, लेकिन यहाँ इनको गिरफ्तार कराया गया। अब इस गिरफ्तार कराने पे जो परेशानियाँ आई, बूढ़ी माँ, वालिद, बेटे, दूसरी बीवी, अपनी औलादें अपने घर में छोड़ के आए, जिन्हें 4 से 5 दिन का बताकर आए, और आगे नहीं मालूम कि 3.5 साल की कैद आ रही है। जजीरा इंडमैन और माल्टा के अंदर इनको गिरफ्तार कराया गया, अंग्रेज वहां ले गया। कितना अरसा इन पे जुल्म और तशद्दुद हुआ। अपने उस्ताद हजरत शेखुल हिंद के साथ ये रहे हैं, इतनी खिदमत सर अंजाम दी है। आप इस वाक़े को पढ़े, खुदा की कसम दिल हिल जाता है। 10 महीने के अंदर मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह ने कुरान करीम हिफ्ज़ किया। जब रमज़ानुल मुबारक आया तो अपने उस्ताद को तरावियाँ पूरी की पूरी कुरान करीम में सुनाई, पूरी कुरान करीम तरावियों में सुनाया। हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, यहाँ जितना जुल्म और तशद्दुद हुआ इन्होंने बर्दाश्त किया। 3.5 साल जेल में थे, और एक अरसे के बाद रिहाई से कुछ दिनों पहले डाक का सिलसिला शुरू हुआ, तो इनके खत जो घर से आए हुए थे, उन खतों की लाइन बंध गई। वो खतूत आए हुए थे, एक एक खत उठा के पढ़ते जेल में बैठ के। किसी में खबर होती आपके बच्चा फौत हो गया है, किसी में खबर होती आपकी बेटी फौत हो गई है, किसी में खबर होती बूढ़ी माँ दुनिया से चली गई है, किसी में खबर होती दूसरी बीवी जो थी वो दुनिया से चली गई, किसी खत में लिखा होता आपका वालिद दुनिया छोड़ गया है। पहाड़ जैसा कलेजा चाहिए जो हुसैन अहमद मदनी को रब ने दिया था। सुनते रहे, बर्दाश्त करते रहे, जुल्म और तशद्दुद की दास्तान इनके साथ खिलवाई गई, लेकिन उन्होंने अल्लाह के दीन पे हरफ नहीं आने दिया, अंग्रेज के सामने सर नहीं झुकाया, और अपने उस्ताद मोहतरम शेखुल हिंद की खिदमत करते रहे। हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह इन दिनों में भी जेल के अंदर पूरे कुरान करीम का तर्जमा लिखा है, और तफसीरी हवाइश लिखे, 10 पारे लिखे थे तफसीर के, तर्जमा पूरा हो चुका था। बाद में हजरत को टाइम न मिला और इंतकाल हो गया। आज उनके शागिर्द ने पूरा किया, जिसे तफसीर उस्मानी कहते हैं। यह तफसीर उस्मानी 10 पारे तक तफसीर और पूरा तर्जमा हजरत शेखुल हिंद ने जेल में बैठ के लिखा है। ये खिदमात इन हजरात के चलते रहे। जब बाहर आए उम्र 42-43 साल है, और इतने सदमे सह चुके थे। गए थे, घर मौजूद था, खानदान मौजूद था, वापस आए ना घर है और ना खानदान है। देखो अल्लाह पाक ने इन कुर्बानियों के बावजूद भी हौसला दिया, और उन्होंने इल्म हदीस की खिदमत सर अंजाम दी है, और ऐसी खिदमत सर अंजाम दी है, यकीन माने दुनिया में जहां भी आपको फज़ल देवबंद का अक्सर तबका मिलेगा, हजरत हुसैन अहमद मदनी रहमहुल्लाह से खुश चैन मिलेगा। आपके और हमारे इलाके के बुजुर्ग हजरत शेखुल हदीस व तफसीर मौलाना अलाउद्दीन नव्वरल्लाहु मरकदहू, हजरत वालिद मोहतरम रहमहुल्लाह, हजरत इमाम अहले सुन्नत शेख सरफराज खान सफदर रहमहुल्लाह, इसी तरह जितने हमारे यहाँ बड़े बड़े बुजुर्ग, बड़े बड़े असातिज़ा, मशाइख, शयूखुल हदीस हैं, वो हजरत मदनी रहमहुल्लाह से पढ़ के आए। इन्होंने इल्म हदीस की खिदमत सर अंजाम दी, और साथ साथ मैदान सियासत को भी अपनाया था। अंग्रेज की आंखों में आंखें डालकर बात करते कि तू जालिम है,
गासिब है, तूने हमारे इलाके पर नाजायज कब्जा किया है, हम तेरे कब्जे को नहीं मानते। अंग्रेज ज्यादा तनख्वाहों की लालच देकर हिंदुस्तान के मुसलमानों के बच्चों को अपनी फौज में दाखिल करके अपनी फौज की कुव्वत बढ़ाता। हजरत मदनी रहमतुल्लाह ने फतवा दिया अंग्रेज की फौज में दाखिला हराम है, इनके खिलाफ केस बन गया। उस वक्त तो ये मुत्तहिदा हिंदुस्तान था, कराची भी अंग्रेज की सल्तनत में था, तो खालिक दीना हाल में अंग्रेज जज की अदालत लगी और हजरत मदनी रहमतुल्लाह को बतौर एक मुजरिम पेश किया गया। और उसने कहा, वकीलों ने इन्हें कहा कि आप कहते मैंने फतवा नहीं दिया, या दिया था तो मेरा उस वक्त जहन सीधा काम नहीं कर रहा था, इधर उधर की बात कर ले, आपकी सजाए मौत तो आपसे बच जाओगे, सजाए मौत की तकलीफ से आप बच जाओगे। इन्होंने वकीलों को कहा, जिंदगी में जो अच्छे काम किए उस पर भी कह दूं कि मेरा जहन काम नहीं करता था, उस नेकी पे भी कह दूं मेरा अकल नहीं काम कर रहा था, क्या मेरी आकमत बर्बाद करते हो। हजरत मदनी जब अंग्रेज की अदालत के कटहरे में पेश हुए तो जज ने कहा, आपको पता है कि मेरी कलम के नीचे, मेरी कलम की नोक के नीचे आपकी मौत को लिखा गया है, तुम जानते हो तुमने जो फतवा दिया था उसकी सजा क्या है। हजरत मदनी ने सर उठाया, कहा, अंग्रेज जज फतवा दिया था ये क्या होता है, मैं तो अब भी फतवा उसी पर कायम हूं, मैं तो अब भी कायम हूं। तुम रसूलुल्लाह के दीन के दुश्मन हो, तुमने इन इलाकों पर नाजायज कब्जा किया है, हम तुम्हारे इस गासिबाना कब्जे को तस्लीम नहीं करते। उसने कहा, आपको पता है मैं हैंगिंग टू द टिल डेथ कहूंगा, तुम लटका दिए जाओगे। इन्होंने अपने रुमाल को निकाल के कहा कि हुसैन अहमद सैयद खानदान का है, हजरत हुसैन इब्ने अली की औलाद है, मैं देवबंद से अपने साथ कफन लाया हूं, कफन साथ लाया हूं, आप मुझे डराते हो। हम जब फतवा लिखा करते हैं तो अपनी मौत और हयात को सामने रख के लिखा करते हैं, दीनी फतवे पर वापसी नहीं हुआ करती। मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमहुल्लाह ताला अलैह को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तसव्वुफ में और दिल की पाकीज़गी में और विलायत में वो रुतबे अता फरमाए थे कि इसकी मिसाल नहीं मिलती। हजरत मौलाना अफजाल सिद्दीकी सवाने शेखुल इस्लाम में लिखते हैं कि मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमहुल्लाह मस्जिद नबवी में एक दिन दर्स हदीस दे रहे थे। एक शागिर्द ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदा हयातुन नबी पर सवाल शुरू किए। वो पूछता, पैगंबर इस्लाम को वफात के बाद जो अल्लाह ने कब्र में जिंदगी अता फरमाई है, जिस बुनियाद पे अल्लाह के रसूल कब्र में उम्मती के हाजिर होने वालों का सलातो सलाम सुनते हैं, उसका जवाब इरशाद फरमाते हैं। वो इस पे सवाल करता, हजरत जवाब देते, वो सवाल करता, जवाब देते। मस्जिद नबवी की महफिल है, उसको समझ नहीं आ रही और हजरत रहमहुल्लाह जवाब समझा रहे हैं। इतने में हजरत शेख ने कहा, अच्छा थोड़ा सा मुराकबा कर लो, सर झुका लो, फिर मैं इधर दुआ करता हूँ, रब तेरे दिल का शरह सदर फरमा देगा, तुझे मसला समझ आ जाएगा। वो कहते हैं सबने सर झुकाया, हजरत ने दरूद पाक पढ़ते हुए आंखें बंद की और इस शख्स ने आंखें खोली तो ये कहता है कि मैं हैरान हो गया, मंजर बदल चुका था। मस्जिद नबवी में गुंबद खजरा वो हमें ऐसे नजर आ रहा जैसे एक कमरा हो शीशों वाला, रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गरामी उसमें यूं जिंदा तशरीफ फरमा और बैठे हैं, अल्लाह के रसूल के साथ सहाबा बैठे हैं। उस पर यह हालत खुली, इस बंदे को एक झटका सा लगा कि वो मैं क्या कहता था और ये क्या हो गया। चंद लम्हात के बाद इसने भी आंखें बंद कर ली, डर के मारे आंखें बंद करके सर झुका लिया। हजरत ने सर उठाया, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बेटा मैंने दुआ की है, रसूलुल्लाह का दरूद पढ़ा है, हुज़ूर पाक पर सलातो सलाम पढ़ा है, अल्लाह ने तुझे मसला समझाया होगा। उसने कहा हजरत मैं तौबा करता हूँ, मैंने हयातुन नबी का इनकार करना समझ लिया था, बस मुझे अल्लाह ने समझा दिया, आप हाथ लाइए और मेरी तौबा अल्लाह के दरबार में कबूल हो जाएगी। रब ने क्या विलायत के दर्जे दिए थे, क्या मकाम दिया था। हमारा डेरा इस्माइल खान सिटी भी खुशकिस्मत है, हजरत मदनी के पाँव यहाँ भी लगे हैं। हमारी ईदगाह कलाम में हजरत मदनी रहमहुल्लाह 1950 में तशरीफ़ लाए हैं। जिस जगह आज हमारी सिविल हेड क्वार्टर अस्पताल का है, मैं इधर हजरत मदनी रहमहुल्लाह के कई जलसे हुए हैं। हजरत वालिद मोहतरम शेखुल हदीस मौलाना महमूदुल हसन कुरैशी रहमहुल्लाह, मैंने अब्बू से जो वाक़यात सुने और अपने जहन में बिठाए हैं, वो फरमाया करते थे हम इधर हजरत मदनी के जलसे की मेज़बानी के तौर पर शरीक थे, इधर हजरत की खिदमत में शरीक थे। तो खुशकिस्मत है हम लोग कि हमारी सिटी को भी ऐसी शख्सियात की कदम बोसी का शर्फ हासिल है। दुआ फरमाएं अल्लाह रब्बुल
इज़्ज़त इन शख्सियात पर रहमत अता फरमाए, इनकी कब्रों को नूर के अंदर मुनव्वर फरमाए, जन्नतुल फिरदौस इनका ठिकाना फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी आखिरत में अच्छे दर्जात अता फरमाए। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के तुफ़ैल होने, हदीस पाक की खिदमत के तुफ़ैल पर, कुर्बानियों की बलबोते पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।